Good morning, everyone. I hope students you have done questions which I have given, and here the chapter number 19, rectification of errors, is going on, as you know, and we have discussed the first part of the double-sided errors. Okay, that was errors which don't affect the trial balance. Okay, or two-sided error. This we have started, and the first one was when an account has wrongly being debited in place of another account. एक account के बदले आप दूसरा गलत debit या credit कर देते हैं, ठीक है. So the second part is, here we have discussed the debited yesterday, and here in the current topic he is talking about the credit one, when an account has wrongly been credited in place of another account, right? Have you understood what did I say? कल जो हमने किया था उसमें डेबिट में गलती हुई थी, आज जो है उसमें क्रेडिट में वो बता रहे हैं, ठीक है. So here the example is, and before starting this video let me tell you the rules once again. Two important rules. I hope you remember which rules I have told you. What do we have to keep in our mind while doing the rectification of errors? Everyone, any one of you? If we have committed any mistake, so we have to remove its effect, means उसको reverse कर देंगे. And second one, जो सही चीज़ है आपने नहीं की है उसे करेंगे. Okay, the right transaction you will be doing. So here it is, they have given in transaction 3000 being the sale proceeds of old furniture has been credited to sales account, right? 3000 you have sold old furniture and you have kept in sales, ठीक है. तो उसके बदले आपने क्या किया? Credited to sales account. So tell me the right entry when you sell the old furniture. Just take your time and tell me. You have done the journal entry. आप बेच रहे हैं फर्नीचर, आप बेच रहे हैं, तो क्या आया और क्या गया? Right. So the right entry is cash account debit to furniture. All right. So this is the right entry which you don't have to do in fair. We will be passing only rectified entry, but this is as your working note, right? Now what you have done, which mistake you have committed when your concepts are not clear. Okay, so instead of furniture you thought it is a normal sale, like sale of goods है. आपने क्या entry की? Cash account debit to sales. So there is no mistake in the cash account, and the problem is in sales. So two accounts are wrong. एक तो आपका फर्नीचर में गड़बड़ हो गया एंड सेल्स में गड़बड़ हो गया. So first we have to think the first point कि आपने एक गलती की है. क्या गलती की है? क्या गलती की है आपने? सेल्स को क्रेडिट कर दिया. राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दिस? क्या गलती की हमने? सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया बिकॉज योर कॉन्सेप्ट्स वर नॉट क्लियर. तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए. दिस इज योर वर्किंग. ओके, नाउ द फेयर एंट्री यू हैव टू डू. सेल्स का इफेक्ट खत्म करो. सेल्स अकाउंट डेबिटेड बाय 3000. Okay, now the second one, something was there, some transaction has taken place, वो आपने नहीं की. क्या नहीं किया? आपने फर्नीचर बेचा था, आपने फर्नीचर को क्रेडिट नहीं किया. तो अब क्या करेंगे आप? जो हमने नहीं किया और वो सही है वो करेंगे. तो क्या करेंगे? फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे. Have you understood this? Is it difficult? No, it's very easy. अगर journal entry आती है and you are thinking in the right direction. अजय, are you getting? सही तरीके से आप उसको समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव, क्या बोलो? जो आपने फर्स्ट टाइम पूछा कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये तो सही है, ये तो लेकिन हमने की नहीं है. ये हमने की नहीं है. ये तो पहले से ही है. जो बीच वाली है वो गलती है, ये हमने कर दी है. ये एंट्री पास को सही कर दिया, सही करा जो आपने सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. तो ये सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट वाले दोनों सेम है. मींस कैश अकाउंट एक तो सही लिख दिया आपने, पहले ही सही है, और एक
ये दोनों आप समझो, ये हमारा वर्किंग नोट है, ये आपको समझाने के लिए। कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कैश को नहीं छेड़ा, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? इन दो में। अब इन दो में ये समझो कि हमसे गलती क्या हुई है। Yes, those who are staying at home, if you didn't understand, pay attention. गलती क्या हुई है? Stop talking please. कि सेल्स को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो इसको मैं डेबिट कर दूँ तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? क्या स्टेटमेंट? इसको जस्ट बोलेंगे तो ऐसे। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रही है? ये तो आ गया। ये लास्ट वाला इट्स वेरी सिंपल कि ये आपने कैंसिल कर दिया। फर्नीचर आपने मेंशन ही नहीं किया, सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, फर्नीचर का कोई लेना देना नहीं है, नहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब ये करेंगे आप, फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। किसी और को डाउट? नेक्स्ट वी हैव, दिस इज ऑल्सो टू साइडेड एरर, when there is a short debit in one account and a short credit in another account। एक अकाउंट में आपका डेबिट में कम हो जाता है, दूसरे में क्रेडिट में कम हो जाता है। Here we have, they have taken the transaction, goods purchased from Sanjay for 2000 was entered in purchase book as 200 only। Understand the statement first। क्या बोला है? Goods purchased from Sanjay for 2000, okay, entered in purchase book as 200 only। Once again, please don't get confused। वर्किंग जो मैं कर रही हूँ उसमें कंफ्यूज नहीं हो। इट इज़ जस्ट हेल्पिंग यू टू डू द राइट वन, टू पास द रेक्टिफाइड एंट्री। वो ठीक से आप पास कर सकें, इसलिए हम उनको कर रहे हैं। अंडरस्टूड दैट? ओके, सो what is the thing which you have done and what is the right thing which you are supposed to do? Is that clear in the transaction? ट्रांजेक्शन में समझ आया क्या बोल रहे हैं? गुड्स परचेज फ्रॉम संजय, क्या एंट्री होगी? राइट, इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय's अकाउंट। कितने का है? इट्स ऑफ 2000। इज दैट क्लियर? ये राइट एंट्री है, करेक्ट एंट्री विच यू आर सपोज टू पास, बट आपने ऐसा नहीं किया। आपसे क्या गलती हो गई? was entered in purchase book as 200 only। तो आपने जो परचेज बुक है यहाँ पे क्या एंटर कर दिया? क्या एंटर किया आपने? सिर्फ 200 आपने एंटर किया, ठीक है। आपने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट बाय 200, राइट। सो purchase account debit to and this is very common mistake students, it's very common, you people do that, either you keep 1 0 extra or less, and it can be this way also कि एक जगह आप 2000 लिख देते हैं, दूसरी जगह 200 लिख देते हैं, ठीक है। now what you have done, purchase account debit आपने 200 से किया है, कितने से होना चाहिए था? इसमें दूसरी चीज आपको सीखने को मिल रही है, ठीक है। आपने परचेज को डेबिट तो ठीक किया है, वहां भी डेबिट होना चाहिए था, ये भी डेबिट है, ठीक है। संजय को क्रेडिट करना चाहिए था, आपने क्रेडिट किया है। गलती क्या हो गई? अमाउंट गलत लिख दिया। हमने कुछ ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया? कितने से कम लिखा? यानी शॉर्ट एंट्री की है। तो हम क्या करें, जो गलती हुई है उसे भी हम ठीक करें एंड जो नहीं किया वो भी करें। इसमें दोनों चीज़ें इकट्ठी मर्ज हो जाती हैं। कैसे कि अगर इसी एंट्री को आप दोबारा से पास कर दें, परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय's अकाउंट बाय रिमेनिंग अमाउंट 1800, तो ये करेक्ट हो जाएगी। तो यू हैव टू बी विजिलेंट, आपको ध्यान रखना है कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अंडरस्टूड दैट? एनी डाउट इन दिस? इट वॉज सिंपल, इसमें हमें कुछ रिवर्स नहीं करना था, इट वॉज शॉर्ट एंट्री ओनली, ठीक है। 1800 से हमने कम पास की थी क्योंकि एक 0 लगाना भूल गए थे।
तो जो हम भूल रहे हैं उसके लिए दोबारा कर देंगे. सो यू कैन सी हेयर योर परचेज इज डेबिटेड बाय 2000 एंड संजय इज क्रेडिटेड बाय 2000 और यही अपने को चाहिए था. ठीक है, तो सिर्फ ये वाली एंट्री पास करने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है. ओके, समझ आ रहा है तुषार? एवरीवन लव समझ आया? Now next category is when there is an excess debit in one account and excess credit in another account, like that. Goods sold to Mohan for 380 on credit was recorded in sale book as 830. ये नोने पो बोलते हैं इस मिस्टेक को, बुक वाले नहीं. इट इज़ माई लैंग्वेज ओनली. वेल समटाइम दिस हैपन्स कि आपको जो बोलना है उससे उल्टा कुछ जम्बल वर्ड्स आप कर देते हैं. And the same thing happens while 38083011471417. So these figures are alike, like एक जैसा सा हमें लगता है. And when we are not very careful, तो sometimes a problem takes place. हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ. ठीक है, तो कुछ इसी तरह की mistakes when it takes place, so how to rectify. So in this it's telling that sold goods to Mohan for 380 on credit. Okay, so this is the right entry, it is the right thing which we are supposed to do. Okay, इसको कर लेते हैं पहले. sold goods to Mohan on credit, what is the entry? Mohan account to sales account. Very good, we are sold to Mohan and that's on credit basis, so entry क्या हो जाएगी? Mohan account debit to sales account 380. This is the correct entry. Okay, but what we have done was recorded in sales book as 830. आपने सेल्स बुक में 830 एंटर कर दिया. ठीक है, right? What we have done, which mistake we have done? पहले वाले केस में हमने कम एंटर किया था, 2000 के बदले हमने सिर्फ 200 एंटर किया था. ठीक है, तो हमने क्या किया, जो बाकी बचा था उसको दोबारा से एंट्री कर दी. बट यहाँ पे उसका रिवर्स हो गया. 380 वॉज देयर, बट आपने 380 के बदले क्या कर दिया, 830 कर दिया. राइट, एंट्री इज ओके. जिस अकाउंट में जाना था उस अकाउंट में आप पहुंचे हैं, बट अमाउंट आपने गलत एंटर कर दिया. ओके, सो लेट अस सी. मोहन को डेबिट करना था 380 से, हो गया 830 से. कितना ज़्यादा डेबिट किया, कितना ज़्यादा किया? 830 माइनस 380. ओके, इट इज 450. 450 रुपीज़ आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? ज़्यादा डेबिट कर दिया. अब क्या सोल्यूशन हो सकता है इसको? क्रेडिट करके इफेक्ट खत्म कर दो. यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ आ रहा है बच्चों कि ज़्यादा डेबिट हो गया और सेल्स को 380 से करना था, ये भी 830 से. सेल्स ज़्यादा क्रेडिट हो गया. क्या